Yes, doubly linked list. So we completed singly linked list, and in singly linked list, it is unidirectional. Singly linked list is unidirectional. Okay, and in single linked list, all the nodes have two fields. The first field is data field, and the other field, next field, is pointer to the next node. But in doubly linked list, each node contains three fields. Each node consists of three fields. And here also, this doubly linked list is a collection of nodes, and the first node is pointed by the external pointer head. Okay, but each node has three fields here in doubly linked list. You can see here, this is the node. You can see what are the fields. Data field, this is the data field. Then this is pointer, next means pointer to the next node. This next field means pointer to the next node. And this one, priv means it is pointed to the previous node, right? This is pointed to the previous node, and this is pointed to the next node. And this is bidirectional. Doubly linked list is bidirectional. Means you can traverse in both directions. It is bidirectional. But singly linked list was unidirectional. Doubly linked list is bidirectional. And each node has three fields. One is data field, second is your pointer to the next field, and third is pointed to the previous. Second is pointed to the next node, and third is pointed to the previous node. Right. So this is the node. You can see, and it has three fields. This is data field. This is pointed to the next node field, and this is pointed to the previous node field. Okay. So this is a node. This field contains address of the next node. This field contains address of the next node. This field contains address of the previous node, right? And this is the data. Okay. And if this is the first node, if there is a doubly linked list, if this, you see, if there is only one node in this doubly linked list, okay, then this value will be null. This pointed to the next node field will be null, and this value pointed to the previous node will also be null. This value. If there is only one node in a doubly linked list, right? तो ये सिंगली लिंक्ड लिस्ट जैसा था ये वैसा ही है. इसमें खाली एक ही डिफरेंस है कि ये बाई डायरेक्शनल है, और इसमें सभी जो नोड होते हैं, नोड के तीन फील्ड होते हैं. पहला फील्ड हो गया तुम्हारा डेटा फील्ड, दूसरा फील्ड हो गया पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड फील्ड, मतलब यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट नोड का एड्रेस रहेगा, और तीसरा फील्ड क्या है, पॉइंटर टू द प्रीवियस नोड फील्ड, मतलब यहाँ पर प्रीवियस नोड का एड्रेस रहेगा. ठीक है. और अगर डबली लिंक लिस्ट में एक ही नोड है, एक ही नोड है मतलब क्या है, उसके बाद भी कोई नोड नहीं है और उसके पहले भी कोई नोड नहीं है. ठीक है ना. तो ये वाला फील्ड क्या होगा, नल हो जाएगा, और ये वाला फील्ड भी नल हो जाएगा. ठीक है. और यहाँ पर तुम लोग ये गलती मत करना कि तुम ऐसा मत सोचना कि ये जो पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड मतलब ये हेड को पॉइंट करेगा, ऐसा नहीं है. ये हेड को पॉइंट नहीं करेगा. समझ में आ रहा है. ये खाली नोड को पॉइंट करेगा. और अगर ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट में अगर एक ही नोड है तो ये वाला पॉइंटर टू द प्रीवियस नोड फील्ड ये नल होगा, और ये पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड फील्ड भी नल होगा. समझ में है या डाउट है स्टूडेंट्स? सर फिर डेटा कैसे एक्सेस होगा हेड को? डेटा एक्सेस होगा मतलब मैं समझ नहीं पाया तुम्हारा. सर मतलब अगर एक ही नोड होगा तो प्रीवियस भी नल होगा, नेक्स्ट भी नल होगा, तो सर कुछ डेटा रहेगा उसमें फिर? हाँ, डेटा यहाँ ना इस फील्ड में डेटा है, इसको कैसे एक्सेस करोगे? इस नोड का एड्रेस कहाँ पे बताओ मुझे. इस नोड का, ये पहला नोड है, दिस द फर्स्ट नोड, फर्स्ट एंड लास्ट नोड. तो इसका एड्रेस कहाँ पर रहेगा, हेड में. हेड में. अब तो हेड पॉइंट कर रहा है ना इसको, तो हेड के थ्रू इसका इसका जितना भी फील्ड है ना, ये नोड है, इस नोड का जितना भी फील्ड है, क्या क्या फील्ड है, डेटा फील्ड है, नेक्स्ट फील्ड है, प्रीवियस फील्ड है. तो ये तीनों फील्ड को अगर तुम एक्सेस करो, कैसे एक्सेस करोगे, हेड के थ्रू. हेड आरो डेटा हेड मतलब ये एरो वाला. डेटा वो हाँ, वाला. ये वाला, हेड एरो नेक्स्ट ये और वाला, हेड एरो प्रीवियस. ये वाला. ठीक है.
समझ में? यस सर। ये देखो, this is a doubly linked list with 3 nodes. Okay, and this is the first node, second node, and third node. First nodes, you always remember that first nodes pointed to previous node field. This one will be null. इसको याद रखना है तुम्हें। डबली लिंक लिस्ट में पहले नोड का ये वाला जो फील्ड है पॉइंटेड टू प्रीवियस नोड, जो प्रीवियस फील्ड है ये वाला नल होगा। डबली लिंक लिस्ट में ये वाला हर घड़ी नल होगा, और ये वाला जो लास्ट नोड का नेक्स्ट फील्ड नल होगा, और पहले नोड का प्रीवियस फील्ड नल होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। और देखो यहाँ पे 3 नोड है, और सभी नोड में 3 फील्ड है, डेटा फील्ड, देन नेक्स्ट फील्ड एंड प्रीवियस फील्ड। ये पहला नोड है, और ये पहले नोड का एड्रेस कहाँ पे हेड में है, हेड इसको पॉइंट कर रहा है। और ये वाला दूसरा नोड है, दूसरा नोड में 3 फील्ड है, डेटा फील्ड, प्रीवियस फील्ड, नेक्स्ट फील्ड। ये नेक्स्ट फील्ड में क्या है, इस नोड का एड्रेस है यहाँ पे, और ये प्रीवियस फील्ड में क्या है, इस नोड का एड्रेस यहाँ पे है। ठीक है ना, तो ये हो गया तुम्हारा पॉइंटर टू नेक्स्ट फील्ड, मतलब पॉइंटर टू दिस नोड, ये वाला पॉइंटर टू दिस नोड यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये फर्स्ट नोड है। फर्स्ट नोड में क्या होता है, प्रीवियस जो है प्रीवियस फील्ड, ये वाला पॉइंटर टू प्रीवियस नोड फील्ड, ये वाला ये नल होगा। वैसे लास्ट नोड का ये नेक्स्ट फील्ड नल होगा। ठीक है, सो दिस इज योर डबली लिंक लिस्ट विथ 3 नोड्स। इसमें तो रिवर्स आसान है। हाँ, इसमें रिवर्स आसान है सर, फर्स्ट नोड का जो नेक्स्ट फील्ड है वो क्या सेकंड नोड का प्रीवियस को पॉइंट कर रहा है? सेकेंड नोड का प्रीवियस को नहीं, पूरा का पूरा सेकेंड नोड को पॉइंट कर रहा है। जैसे कि तुम सिंगली लिंक लिस्ट में देख ये कर रहे थे, तो वहाँ पर मान लो फर्स्ट नोड, सेकंड नोड, थर्ड नोड ऐसा है, तो सिंगली लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड के नेक्स्ट फील्ड में क्या था, सेकंड नोड का एड्रेस। सेकंड नोड का एड्रेस था, या सेकंड नोड का डेटा का एड्रेस था, या सेकंड नोड का नेक्स्ट का फील्ड का एड्रेस था, क्या था, सेकंड नोड का एड्रेस था। ओके सर। है कि नहीं? वैसे ही यहाँ पर ये जो नेक्स्ट फील्ड में यहाँ पर क्या होगा, ये पूरा का सेकंड नोड का नोड का एड्रेस। एड्रेस रहेगा। ऐसा मत समझोगे खाली इसका एड्रेस है, इसका एड्रेस है, इसका एड्रेस। ये पूरा का पूरा नोड का एड्रेस यहाँ पर है। ठीक है ना? ठीक है सर। और किसी का डाउट है इसमें, किसको समझ में नहीं आया? Okay, so now we will, yeah, you see here, this is the structure of a node in a doubly linked list. Doubly linked list. C structure. तो यहाँ पर एक चीज एक्स्ट्रा रहेगा, क्या एक्स्ट्रा रहेगा स्ट्रक्चर में? नोड स्टार प्रीवियस। नोड स्टार प्रीवियस, और तो बाकी जो था वही रहेगा। बाकी ये वाला था इन डेटा, डेटा तो था वही है, और ये स्ट्रक नोड स्टार नेक्स्ट ये तो था वही है, खाली ये एक्स्ट्रा रहेगा स्ट्रक नोड स्टार प्रीवियस। ये क्यों रहेगा? क्योंकि प्रीवियस नोड को पॉइंट करना है। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर ए डबली लिंक लिस्ट। ओके, समझ में आया? यस सर। अच्छा, इस डेटा को कैसे एक्सेस करोगे बताओ मुझे। मान लो कि हम इसका एक वेरिएबल बनाएंगे, इसका स्ट्रक्ट नोड का, लेट इट बी हेड। तो कैसे करोगे? स्ट्रक्ट नोड स्टार हेड, तो हेड के थ्रू ये डेटा कैसे एक्सेस करोगे? हेड एरो ने डेटा। हेड एरो डेटा। और ये प्रीवियस को कैसे एक्सेस करोगे? हेड एरो प्रीवियस। यस, हेड एरो प्रीवियस। नेक्स्ट को हेड एरो नेक्स्ट। हेड एरो नेक्स्ट। ओके, वैसे ही मैंने अभी हेड का, मैं अगर मान लो हेड का जगह पीटीआर बोलूँगा, इसका वेरिएबल मान लो स्ट्रक्ट नोड स्टार पीटीआर में कर रहा हूँ, स्ट्रक्ट नोड स्टार पीटीआर। तो पीटीआर के थ्रू मैं डेटा एक्सेस कैसे करूँगा? पीटीआर एरो डेटा, है कि नहीं? वैसे पीटीआर के थ्रू प्रीवियस कैसे एक्सेस करूँगा? पीटीआर एरो प्रीवियस। वैसे नेक्स्ट को कैसे एक्सेस करूँगा? पीटीआर एरो नेक्स्ट। ठीक है, समझ में आया? यस सर। Now create a doubly linked list with one node. This is the create function.
और डबली लिंक लिस्ट। अभी हमें एक नोड डबली लिंक लिस्ट बनाना है जिसमें कि एक ही नोड होगा, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे देखो, ये है सी कोड उसके लिए। स्ट्रक्चर ऐसे हमने अभी डिस्कस किया पिछले स्लाइड में स्ट्रक्चर। सो स्ट्रक्ट नोड, देन ब्रैकेट स्टार्ट इंट डेटा, डेटा के लिए, देन स्ट्रक्ट नोड स्टार प्रीवियस, देन स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट, देन स्ट्रक्चर खत्म हो गया यहाँ पर सेमीकोलन, ठीक है। ये तो हो गया, समझ में आ गया तुम्हें। देन एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं किसका, स्ट्रक्चर का, स्ट्रक्ट नोड स्टार हेड, ठीक है। हेड किस लिए बना रहे हैं, क्योंकि ये फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा, इसलिए हम हेड डिक्लेयर कर रहे हैं, स्ट्रक्ट नोड स्टार हेड, ठीक है। ये स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर लिए और स्ट्रक्चर का हेड भी डिक्लेयर कर लिए, ठीक है ना। हेड मतलब लिंक लिस्ट जो बनाएंगे डबली लिंक लिस्ट, उसका हेड पॉइंटर भी डिक्लेयर कर लिए। अभी नोड बनाएंगे, ठीक है ना। नोड बनाने के बाद नोड में डेटा असाइन करेंगे और क्या करेंगे बताओ। डबली लिंक लिस्ट बनाना है, इसका मतलब क्या है, एक नोड बनाएंगे, नोड में 3 फील्ड रहेगा, डेटा फील्ड, नेक्स्ट फील्ड, प्रीवियस फील्ड, और इस नोड को पॉइंट कौन करेगा, हेड पॉइंट करेगा। ये तो करना है ना, और कुछ करना है। और अगर एक नोड रखना है तो क्या होगा, जो सर नोड का नेक्स्ट फील्ड क्या होगा, नल होगा, और यस प्रीवियस फील्ड सर। भी नल होगा। खाली डेटा फील्ड में जो डेटा देंगे वही रहेगा, है कि नहीं। और इस नोड को पॉइंट कौन करेगा, हेड पॉइंट करेगा। इतना ही तो करना है ना, या और कुछ करना है। सर उतना ही करना है। बस अभी आ जाओ यहाँ पे, फंक्शन में आ जाओ। यह फंक्शन का नाम वॉइड क्रिएट डी लिस्ट, फंक्शन का मैंने दिया डी लिस्ट, ठीक है ना। क्रिएट डी लिस्ट, डी फॉर डबली, ठीक है। वॉइड क्रिएट डी लिस्ट इंट आइटम। आइटम मतलब ये जो डेटा, मतलब जो नोड में जो डेटा रखना चाहते हो वो ये इधर आएगा। मतलब तुम अगर कोई सा नोड बनाना चाहते हो लिंक लिस्ट का, मतलब लिंक लिस्ट डबली लिंक लिस्ट अगर बनाना चाहते हो, कभी बनाओगे तो इस फंक्शन को कॉल करके बना सकते हो, ठीक है ना। और जब इस फंक्शन को कॉल करोगे तो डबली लिंक लिस्ट बनेगा, ठीक है ना। एक ही नोड बनेगा उसमें, और उस नोड का डेटा फील्ड क्या रहेगा, यहाँ पर जो तुम पास करोगे, ठीक है ना। जो पास करोगे डेटा, जब इसको कॉल करोगे वही आएगा, वो रहेगा डेटा फील्ड, ठीक है। अभी देखो नोड बना रहे हैं यहाँ पे, उसका मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन यूज करके, एलोक फंक्शन यूज करके। स्ट्रक्ट नोड स्टार पीटीआर इक्वल्स टू स्ट्रक्ट नोड स्टार मैलोक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। तो यहाँ पर मेमोरी एलोकेट हो गया और नोड बन गया। नोड का एड्रेस ही रिटर्न करेगा। तो एड्रेस को हम कहाँ पर रख रहे हैं, देखो पीटीआर में रख रहे हैं, और चेक कर रहे हैं कि ये नल है कि नहीं। नल मतलब क्या होता है मुझे बताओ, पीटीआर इक्वल्स नल यहाँ पर होगा तो मतलब क्या है, बोलो। लिंक लिस्ट फुल है सर। लिंक लिस्ट फुल नहीं है, मेमोरी फुल है। हाँ यस सर। मेमोरी मतलब तुम्हारा रैम, कंप्यूटर का रैम। सारा भी जो कर रहे हो सब रैम में ही तो होता है, मेमोरी में होता है, कंप्यूटर के मेमोरी में होता है, ठीक है। तो वहाँ पर अवेलेबल मेमोरी नहीं है, इसलिए मेमोरी एलोकेट नहीं हो सकता। नया नोड जो तुम बना रहे हो, बनाना चाहते हो, उसके लिए मेमोरी नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो। तो यस अगर सर। मेमोरी नहीं है तो ओवरफ्लो मैसेज प्रिंट कर रहे हैं, एरर मैसेज। एल्स मतलब क्या, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहे, मतलब नोड बन गया, उसका मेमोरी एलोकेट भी हो गया, और एक एड्रेस रिटर्न कर रहे हैं, और एड्रेस कहाँ पे, पीटीआर में चेक कर रहे हैं। एल्स पीटीआर में एड्रेस है, मतलब ये सेटिस्फाई नहीं करे, इधर आ जाओ एल्स पार्ट में। तो क्या करना है, नोड बन गया और नोड का एड्रेस कहाँ पे है, किस में है, पीटीआर में है, ठीक है। नोड बन गया, नोड का एड्रेस कहाँ पे, पीटीआर में है, ठीक है। तो पीटीआर के थ्रू, जैसे कि देखो ये वाला पीटीआर है ना, पीटीआर के थ्रू डेटा को एक्सेस करना है, और उसमें इस फील्ड को एक्सेस करना है, और वहाँ पर ये जो डेटा इधर आया होगा उसको असाइन करना है, और देन इसको एक्सेस करना है, वैल्यू असाइन करना है, इसको एक्सेस करना है, वैल्यू असाइन करना है कि नहीं। तो कैसे करोगे, एक ही नोड बनाना है लिंक लिस्ट में, तो डेटा उसमें असाइन करना है, और क्या करना है, नेक्स्ट फील्ड को इनिशियलाइज करना है, प्रीवियस फील्ड को भी इनिशियलाइज करना है, ठीक है ना। प्रीवियस फील्ड कितना होगा वैल्यू, नल होगा, नेक्स्ट फील्ड का वैल्यू भी नल होगा, ठीक है ना। और ये डेटा का वैल्यू जो पास किए होगे वो आएगा, आइटम, ठीक है। तो इधर आओ, कैसे करोगे देखो, इधर आ जाओ, देखो पीटीआर, इसको कैसे एक्सेस करोगे, नेक्स्ट को, नेक्स्ट फील्ड नोड का एरो नेक्स्ट। पीटीआर एरो नेक्स्ट, देखो पीटीआर एरो नेक्स्ट इक्वल्स कितना होगा, नल होगा, क्योंकि एक ही नोड है। देन पीटीआर एरो प्रीवियस कितना होगा, नल होगा, ठीक है।
और ये डेटा कैसे एक्सेस करोगे? पीटीआर एरो डेटा इक्वल्स टू आइटम। ठीक है, ये हो गया। मतलब तीनों फील्ड को हमने इनिशियलाइज कर लिया, तीनों फील्ड को वैल्यू असाइन कर लिया। और अभी क्या करना है, इस नोड को पॉइंट करेगा कौन? हेड पॉइंट करेगा। तो इस नोड का एड्रेस को हेड में असाइन करना है, ठीक है ना। तो इस नोड का एड्रेस कहाँ पे? पीटीआर में, और उसको असाइन किसको करना है? हेड में। सो हेड इक्वल्स टू पीटीआर कर लिया, देखो हो गया। उसके बाद खाली एक मैसेज प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंटेड लिंक लिस्ट क्रिएटेड विथ वन, ठीक है। So this is the create function for doubly linked list. Okay. Any question in this? So it is creating one node. It is creating a doubly linked list with one node only, right? Any question in this? No, sir. Okay, good. No, sir. Okay. Now we will see the next operation, insert at the end of the doubly linked list. Okay. So insert at the end of the doubly linked list, how we will do that? Can you tell me कैसे करें? डब्ल्यू लिंक लिस्ट में एंड में एक नया न्यू नोड इंसर्ट करना है, कैसे करोगे बताओ? कैन यू टेल? एक नोड बनाएंगे। हाँ, एक नोड बनाएंगे। हाँ नोड बनाएंगे, फिर उसके बाद हम ट्रैवर्स करके वो लास्ट नोड तक आएंगे। हाँ लास्ट नोड तक आएंगे। उसके बाद और उसके बाद टेम्प नेक्स्ट करके पीटीआर का एड्रेस उसमें डालेंगे। हाँ, यस, एंड देन पीटीआर लास्ट नोड को हम नॉल कर देंगे। यस, पीटीआर जो लास्ट नोड का नेक्स्ट फील्ड है उसको नल करेंगे। और क्या करेंगे? और भी एक चीज करना है यहाँ पे, प्रीवियस पीटीआर हाँ। का वैल्यू स्टोर करना है नेक्स्ट का, सॉरी टेम्प का नेक्स्ट में। यस, किसका? टेम्प का नेक्स्ट में क्या क्या रखना है यहाँ पे? इसका एड्रेस रखना है, पीटीआर Yes, का sir. एड्रेस। और इसका प्रीवियस में, पीटीआर का प्रीवियस भी तो है ना, वो भी सर टेम्प में रहेगा। यहाँ पर कितना क्या रखोगे? टेम्प का एड्रेस। टेम्प का एड्रेस। टेम्प का एड्रेस यहाँ रखना है, ठीक है। तो ऐसे करके हम न्यू नोड इंसर्ट कर सकते हैं एंड में। देखो हमें इसमें क्या करना है कि ट्रावर्स करना है हमें, पहले नोड से आना है, लास्ट नोड तक आना है। लास्ट नोड तक आने के बाद ये टेम्प क्या करेगा? टेम्प जो ट्रावर्स कर रहे हैं ना, टेम्प में सारे नोड का एड्रेस को रख रहे हैं। तो उसका मतलब क्या है? टेम्प पॉइंट कर रहे हैं सारे नोड को। पहले टेम्प पहले इसको पहले नोड को पॉइंट करेगा, उसके बाद टेम्प दूसरे नोड को पॉइंट करेगा। ऐसे करते करते वो आ जाएगा कहाँ पे? लास्ट नोड तक आ जाएगा। तो ये अभी देखो यहाँ पर लास्ट नोड तक आ गया टेम्प यहाँ लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। उसके बाद क्या करना है, हम जो नया नोड बनाए हैं उसको यहाँ पर इंसर्ट करेंगे लास्ट नोड के बाद। और नया नोड जो बना है उसका एड्रेस कहाँ पे? पीटीआर में, ठीक है। तो इसको यहाँ इंसर्ट करेंगे। उसका मतलब क्या है ना, ये जो टेम्प है, टेम्प का नेक्स्ट फील्ड, ये वाला नेक्स्ट फील्ड पहले क्या था? नल था। अब ये नल नहीं रहेगा, इसको यहाँ पर चेंज करना है। यहाँ पर रखेंगे क्या? इस पीटीआर जो नोड, ये पीटीआर नोड है, न्यू नोड, इसका एड्रेस, ठीक है, यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, पीटीआर का जो प्रीवियस फील्ड है यहाँ पर, मतलब ये वाला, यहाँ क्या रखेंगे? इसका एड्रेस रखेंगे, इस नोड का एड्रेस। इस नोड का एड्रेस कहाँ पे? टेम्प में, यहाँ इसको असाइन करेंगे। उसके बाद ये जो इस नोड का लास्ट नोड का नल नेक्स्ट फील्ड जो ये वाला, इसको नल करना है। तो यहाँ पर कैसे किए, देखो यहाँ पहुँच गए। यहाँ पहुँचने के बाद टेम्प नेक्स्ट इक्वल्स, देखो टेम्प नेक्स्ट इक्वल्स टू टेम्प आरो नेक्स्ट, देखिए टेम्प आरो नेक्स्ट इक्वल्स टू पीटीआर किया, ठीक है। टेम्प आरो नेक्स्ट इक्वल्स टू पीटीआर का मतलब क्या है बताओ? सर टेम्प का नेक्स्ट ये वाला। पीटीआर का एड्रेस का स्टोर किया है। यस, यहाँ पे हमने इस नोड का एड्रेस रख दिया। देन पीटीआर आरो प्रीवियस, पीटीआर आरो प्रीवियस मतलब क्या है बताओ? पीटीआर का प्रीवियस। यस, इस नोड का प्रीवियस, ये वाला फील्ड, ये वाला। तो यहाँ पर देखो क्या असाइन कर रहे हैं? टेम्प, टेम्प मतलब इस नोड का एड्रेस, इस नोड का एड्रेस टेम्प में है तो उसको असाइन कर लिए, ये वाला फील्ड, ठीक है। देन पीटीआर आरो नेक्स्ट, पीटीआर नेक्स्ट मतलब क्या है? पीटीआर का नेक्स्ट। पीटीआर का नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट मतलब ये वाला, इसको नल कर रहे हैं, देखो नल किया, ठीक है, ओके। तो पहले तुम्हें क्या करना है, यहाँ से लास्ट तक पहुँचना है, लास्ट तक आना है, ठीक है ना, ट्रैवर्स करके यहाँ लास्ट नोड तक आना है टेम्प यूज करके, ठीक है ना। टेम्प लास्ट नोड को पॉइंट करेगा, उसके बाद ये कर सकते हैं। ये अभी समझ गए हम लोग, ठीक है ना। इसको डिस्कस कर लिए, इसको समझ में आ गया।
लेकिन इससे पहले टेम्प को यहाँ तक लाना है, ठीक है ना। तो टेम्प को यहाँ तक कैसे लाओगे ट्रैवर्स करके, कंडीशन क्या रखोगे, लास्ट नोड का कंडीशन क्या है, कोई बता सकता है कैसे ट्रैवर्स करके यहाँ से यहाँ तक आए, क्या कंडीशन देना है? temp of next is not equal to null. यस, टेम्प अराउंड टेम्प अराउंड नेक्स्ट जब तक नल नहीं होता है तब तक क्या करेंगे, टेम्प इक्वल्स टू क्या करेंगे, टेम्प अराउंड नेक्स्ट इक्वल्स ptr. नहीं, तुम्हें यहाँ तक आना है, लास्ट नोड तक पहुँचना है, कैसे आगे बढ़ोगे, पहले क्या करोगे, टेम्प इक्वल्स टू हेड करोगे, मतलब इसको पॉइंट करेगा। सर टेम्प इक्वल टू टेम्प अराउंड नेक्स्ट. यस, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प अराउंड नेक्स्ट करते जाओगे जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाई करता जाएगा, ठीक है। तो वही कर रहे हैं, देखो यहाँ पे void insert last, this is the function name, ओके। int item, आइटम मतलब जो भी तुम डेटा इंसर्ट करना चाहते हो लास्ट नोड में, ये वाला है, जब कॉल करोगे इस फंक्शन को तो वही पास करोगे, ठीक है। अभी देखो हम मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं न्यू नोड का, struct node star ptr इक्वल्स टू struct node star malloc size of struct node, ये मेमोरी नोड बन जाएगा, मेमोरी एलोकेट हो जाएगा यहाँ पे, और उसका एड्रेस कहाँ पर, ptr में रह जाएगा, ठीक है ना। ptr में इधर नल रहेगा या तो फिर जो नोड बना होगा उसका एड्रेस रहेगा। अगर नल है मतलब क्या है, रैम में कुछ खाली नहीं है जगह तो ये मैसेज प्रिंट कर देगा, और अगर ये नल नहीं है मतलब मेमोरी एलोकेट हो गया, नोड बन गया, मेमोरी एलोकेट हो गया, और तो क्या करना है, ये वाला एल्स ptr आरो डेटा इक्वल्स टू आइटम कर लिए, ठीक है, ptr आरो डेटा, देखो डेटा आइटम कर लिए। उसके बाद क्या करना है कि इफ हेड इक्वल्स टू नल, इसका मतलब क्या, कोई बताएगा, इफ हेड इक्वल्स टू नल मतलब क्या है? एक ही नोड है, एक ही नोड है, कोई नोड नहीं है, नहीं कोई नोड नोड नहीं, नहीं है, कोई नोड नहीं है। तो अगर कोई नोड नहीं है तो ये जो नया नोड बनाई हो क्या हो जाएगा, इट विल बी, प्रीवियस में नल होगा, उसका नेक्स्ट भी नल होगा। हाँ, इट विल बी द फर्स्ट नोड, इट विल बिकम फर्स्ट नोड। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट एट द एंड ऑफ द डब्ल्यू लिंक लिस्ट। लेकिन अगर डब्ल्यू लिंक लिस्ट में कोई भी नोड नहीं है, एम्प्टी लिस्ट है, तो क्या होगा, अभी जो नया नोड इंसर्ट करना चाहते हैं इट विल बिकम द फर्स्ट नोड, है कि नहीं, ये समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर पहले से कोई भी नोड नहीं है तो अभी जो नोड तुम इंसर्ट कर रहे हो वो क्या बन जाएगा, इट विल बिकम द फर्स्ट नोड। और फर्स्ट नोड का कंडीशन क्या होता है, फर्स्ट नोड में क्या होता है, नेक्स्ट फील्ड भी नल होगा, प्रीवियस फील्ड भी नल होगा, है कि नहीं। हेलो, यस सर. तो ये वही चेक कर रहे हैं कि जो डब्ल्यू लिंक लिस्ट वो नल मतलब एम्प्टी है कि नहीं, तो देखो चेक किए, इफ हेड इक्वल्स टू नल मींस एम्प्टी है, अगर एम्प्टी है तो क्या करना है, ptr arrow नेक्स्ट, देखो इसको नल करना है, मतलब दिस नोड, दिस न्यू नोड विल बिकम नाउ द फर्स्ट नोड, ओके, फर्स्ट नोड मींस फर्स्ट एंड लास्ट नोड, ओके। So ptr arrow next becomes null and ptr arrow previous also null, then head equals to ptr, ठीक है। हेड पॉइंट करेगा इस नोड को पॉइंट करेगा, डेटा ऑलरेडी असाइन कर चुके हैं यहाँ पे, ptr arrow डेटा इक्वल्स टू आइटम, ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो एल्स, एल्स मतलब क्या है, एल्स में क्या होगा कि नहीं एक एम्प्टी नहीं है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं है, उसमें कुछ नोड ऑलरेडी है, तो ऑलरेडी अगर है तो क्या करोगे, एंड तक जाना है ट्रैवर्स करके, है कि नहीं, एंड तक ट्रैवर्स करके जाना है, फर्स्ट नोड से एंड तक जाना है, लास्ट नोड तक जाना है, कैसे जाओगे, देखो टेम्प इक्वल्स टू हेड किया मैंने, ठीक है ना, टेम्प इक्वल्स टू हेड, टेम्प को यहाँ डिक्लेयर किया था, स्ट्रक्ट नोड स्टार टेम्प, टेम्प इक्वल्स टू हेड मतलब क्या, नाउ टेम्प इज पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड, देन व्हाइल टेम्प आरो नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल, देन क्या करना है, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प आरो नेक्स्ट, ऐसे करते करते जाएंगे तो ये चलता जाएगा कब तक, जब तक हम लास्ट नोड तक नहीं पहुंचते। जब लास्ट नोड तक पहुंच जाएंगे, ठीक है ना, मतलब टेम्प लास्ट नोड को पॉइंट करेगा तभी ये टर्मिनेट होगा लूप, है कि नहीं। ये लूप कब टर्मिनेट होगा, जब लास्ट नोड तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट नोड तक पहुंचने के बाद क्या करना है, ये करना है जो यहाँ पर किए थे, ये वाला, ये जो कोड है, टेम्प को देखो लास्ट नोड तक पहुंच गए, पहुंचने के बाद क्या करना है, ये तो कर रहे हैं ना, तो वही लिखा है देखो यहाँ पे, टेम्प आरो नेक्स्ट इक्वल टू ptr, ptr आरो प्रीवियस इक्वल टू टेम्प, ptr आरो नेक्स्ट इक्वल टू नल, देन ये खाली मैसेज प्रिंट करे, प्रिंट है नोड इंसर्ट,
ओके, समझ में आया कि नहीं? यस सर। ओके, किसी को डाउट है इसमें अभी तक जितना हम डिस्कस किए? अगर डाउट है तो बोलो। ओके, since there is no doubt, I'm moving to the next content. अच्छा, इसको डिस्कस करें? ठीक है, कर लेते हैं इसको डिस्कस। इसको डिस्कस करें या प्रोग्राम लिख के देखें उसको, जो लास्ट क्रिएट और एंड इंसर्ट एट द एंड? क्या करें बताओ? इंसर्ट एट द बिगिनिंग डिस्कस करें अभी, या प्रोग्राम लिख के दिखाऊं तुम्हें? प्रोग्राम रन करके दिखाऊं? Okay, let's see the program. ये देखो, can you see my screen, students? Yes, sir. Okay. So header file included. Okay. Then structure, struct node in data, struct node star previous, prev, struct node star next. Okay. Then structure end semicolon. Then struct node star head. Okay. Head is the pointer. उसके बाद यहाँ पर देखो फंक्शन create delist function. Okay. Int item parameter. Then struct node star ptr equals to struct node star malloc size of struct node, मतलब ये नोड बन जाएगा, मेमोरी एलोकेट हो जाएगा। और यहाँ चेक करें ptr equals to null, देन ये मैसेज प्रिंट करेगा। एल्स क्या करना है, नोड बनाया, नोड में जो नेक्स्ट फील्ड प्रीवियस फील्ड और डेटा को असाइन करेगा। ptr और नेक्स्ट नल, ptr और previous equals to null, then ptr और डेटा equals to item, then head equals to ptr, then ये मैसेज प्रिंट करेगा created linked list created with one node. ओके, तो ये हो गया तुम्हारा लिंक लिस्ट बनाने के लिए। ओके, देन लिंक लिस्ट विथ वन नोड। ओके, डबल लिंक लिस्ट विथ वन नोड, देन इंसर्ट एट द लास्ट, सी void insert last int item, ये वाला यहाँ पर नोड बन गया। ओके, टेम्पररी पॉइंटर डिक्लेयर कर रहे हैं। देन इफ ptr इक्वल्स टू नल, ये वाला देखो, नोड बनने के बाद नोड का एड्रेस ptr में रहेगा। और कुछ चेक करें ptr इक्वल्स टू नल, देन ये मैसेज प्रिंट कर रहे हैं। एल्स इधर आ गए, इसमें क्या कर रहे हैं, ptr डेटा, डेटा फील्ड में आइटम जो यहाँ पर पास किए होंगे वो वाला गया, इसमें असाइन हो जाएगा डेटा में। देन यहाँ चेक करें एम्प्टी लिस्ट है कि नहीं। इफ हेड इक्वल्स टू नल, देन एम्प्टी लिस्ट। सो एम्प्टी लिस्ट है तो क्या करना है, ये जो नया नोड बना है ये पहला नोड बन जाएगा। तो उसमें क्या करना है, ptr एरो नेक्स्ट इक्वल्स टू नल हो जाएगा, ptr एरो प्रीवियस इक्वल्स टू नल हो गया, देन हेड इक्वल्स टू ptr। सो नाउ हेड विल पॉइंट टू दिस नोड। ओके, एल्स मतलब अगर ये दोनों कंडीशन नहीं हो रहा है तो थर्ड कंडीशन में क्या करना है, मतलब ऑलरेडी डब्ल्यू लिंक लिस्ट में कुछ नोड्स हैं तो वहाँ पर लास्ट पोजीशन में इंसर्ट करना है, तो ट्रावर्स करना पड़ेगा। तो ट्रावर्स करने से पहले टेम्प एक पॉइंटर यूज करें, टेम्पररी पॉइंटर। सो टेम्प इक्वल्स टू हेड, एंड वाइल टेम्प आर नेक्स्ट नॉट इक्वल्स नल, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प नेक्स्ट कर रहे हैं। और ये चलता जाएगा ये लूप जब तक लास्ट नोड में नहीं पहुँचते हैं। और जब लास्ट नोड में पहुँच जाएंगे, टेम्प लास्ट को पॉइंट करेगा लास्ट नोड को। उसके बाद क्या करना है, टेम्प आरो नेक्स्ट इक्वल्स टू ptr, ptr आरो प्रीवियस इक्वल्स टू नेक्स्ट टेम्प, देन ptr आरो नेक्स्ट इक्वल्स टू नल। देन ये मैसेज प्रिंट कर रहे हैं नोड डिस्प्ले, नोड इंसर्टेड। ओके, उसके बाद ये वाला बिगिनिंग का मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ। ओके, उसके बाद डिस्प्ले करने के लिए, ट्रावर्स करने के लिए फंक्शन है ट्रावर्स एंड प्रिंट। ठीक है, ये सेम है, इसमें और कोई चेंज नहीं है, जो हम सिंगल लिंक लिस्ट में यूज कर रहे थे वही सेम फंक्शन है। ओके, तो अभी इसको मैं रन कर रहा हूँ, देखो ये देखो, एंटर योर चॉइस। क्रिएट डब्ल्यू लिंक लिस्ट के लिए 1 प्रेस करना है, इंसर्ट एट द एंड के लिए 2, डिस्प्ले के लिए 3। ठीक है, तो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, 1 प्रेस कर रहा हूँ, एंटर। एंटर द आइटम, मतलब डेटा क्या इंसर्ट करना चाहते हो, से 1 एंटर। देखो लिंक लिस्ट क्रिएटेड विथ
वन नोड। अब इसको देखें कैसे, ये डिस्प्ले करने के लिए थर्ड ऑप्शन है डिस्प्ले डब्ल्यू लिंक लिस्ट, सो ऑप्शन 3 एंटर, देखो आ गया 1, देखिए 1। अभी और इंसर्ट करना है कहाँ पे, एट द एंड ऑफ द डब्ल्यू लिंक लिस्ट, इनके लिए कौन सा ऑप्शन है 2, सो 2 एंटर द आइटम से 2 दे रहा हूँ, एंटर, इंसर्ट हो गया, नोड इंसर्टेड। फिर से इंसर्ट करेंगे एंड में 2, आइटम डेटा के अंदर कौन सा देंगे 3, सपोज 3, फिर से इंसर्ट करेंगे 2, डेटा 4, फिर से इंसर्ट करेंगे एट द एंड 5, फिर से 6। ठीक है, मैं 6 नोड मैंने बनाया और डेटा मैंने 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके दिया है। अभी देखते हैं डिस्प्ले करके 3, देखो 1 2 3 4 5 6 है कि नहीं। समझ में? यस सर। ओके, एनी क्वेश्चन? कोई अगर क्वेश्चन है तो बोलो, नहीं तो मैं एंड करता हूँ मीटिंग। ओके, since there is no question, I am ending the meeting, so we will discuss in the next class. नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो बाकी है रेस्ट ऑपरेशन है वो डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू।